جہاں ہر دن ہر ایک رات دینی جلسہ، دینی محفل، دینی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہم بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں تشریف لاتے ہیں، ہم ان کی تقریر سنتے ہیں، لیکن شاید کبھی ان کی باتوں کو اس ٹائم جب تک سنتے ہیں تب تک اپنی زندگی کو چینج کرنے، بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حالات جیسے ہی ہم اس جگہ سے، اس جلسہ گاہ سے اپنے گھر کو روانہ ہوتے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں علماء یا عالموں کی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ سارے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان بھی ایک ایسی شخصیات کی تشریف آوری ہوئی ہے جن کا سیمانچل ہو یا غیر سیمانچل ہو، الحمدللہ شیخ محتاج تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سارے لوگ شیخ کو اچھے سے جانتے ہیں اور ان کی تقریر بھی بس اوقات سنتے ہیں یا سن چکے ہیں، لیکن آج شیخ کی تشریف آوری ایسے سرزمین پر ہوئی ہے اور ایسے شخصیات کے پاس ہوئی ہے کہ بس اوقات ہم سارے لوگوں کو کہنے پر یہ تعجب نہیں ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ایسے ایسے لوگوں کو بھیجا ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کام نہیں۔ میرے بھائیوں، موضوع نصیحت بہت سنتے ہیں لیکن کتنا عمل کرتے ہیں، زندگی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آئیے ہم اس شعر کے طرف میں چلتے ہیں جس میں علامہ اقبال اپنے شعری بیان میں کہا تھا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں، شیخ الحمدللہ ہمارے سامنے بھی شیخ کا خطاب ہوگا۔ نہ جانے کب کس انسان کے دل میں کون سی بات ایسی دل میں جا لگے یا جا بسے کہ ہماری زندگی کو چینج کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے وہ نقطہ، وہ پوائنٹ کافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سارے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، بغیر تاخیر کے، بغیر دیر کیے ہوئے، آپ سارے لوگ اگر ہماری آواز کو سن رہے ہیں تو ہماری آواز پر آپ لبیک کہیے اور بالکل بالفور بولتے ہوئے آئیے، اسی لیے کہ شیخ ابھی ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ موضوع نصیحت بہت سنتے ہیں لیکن کب کون سا کام، کون سی بات، کون سی باتیں آپ کے دل میں لگ جائے اور آپ کی زندگی اور آپ کی پوری عمر سمجھ جائے، سدھر جائے، ہم اور آپ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ آج شاید اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے اور جمع کرنے کا اللہ رب العالمین نے اہداف اور مقصد انسانوں کے اندر رکھا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سارے لوگ اس کے کھڑے اتر رہے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں اسی شعر کے ساتھ کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں شیخ انعام الحق مدنی صاحب صوبائی جمعیت اہل حدیث ہند کی اپنے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ میں پر تشریف لائے اور ہم سامنے کو اپنے شیر بیان سے مستفیض فرمائے۔ شیخ انعام صاحب مدنی حفظہ اللہ ورعاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال فی موضع آخر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ۔ معزز علماء کرام، بالخصوص
इस मदरसे के मुअस्सिस और डायरेक्टर जनाब कारी गुलफराज आलम साहब, उनके भाई दिलशाद आलम साहब, और इस गांव से बल्कि उन्हीं के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब नईम अख्तर साहब, मदरसा हिरा अल इस्लामिया के उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना तबरेज़ आलम लतीफ़ी साहब, और इस अच्छे प्रोग्राम की अच्छी निज़ामत करने वाले जनाब हाफिज़ कारी मौलाना मोतीउर रहमान सलफ़ी साहब, जो हथिया दियारा से तशरीफ़ लाए हैं, दीगर ज़िम्मेदारान, असातिज़ा, मुअल्लिमात, बापर्दा माओ बहनों और अज़ीज़ तलबा, आपके सामने इस जगह पर पहुंचकर जब से मैं पहुंचा हूं बहुत हैरान हूं, और मैं बात कहां से शुरू करूं और क्या क्या आपसे कहूं। बच्चियों की तकरीरें मैंने सुनी, बच्चों की भी तकरीरें सुनी। माहद उबई बिन काब या मदरसा उबई बिन काब, मदरसा उबई बिन काब लिल बनीन वल बनात वाक़ई अपनी मानवियत और मकसद के एतबार से कामयाब है। सिर्फ 6-7 महीने में ये बच्चियाँ जो तैयार हुई हैं और तैयारी करके वो तकरीरें कर रही हैं, मैंने सुनी उन तकरीरों को। उसी तरह से ये बच्चे जो 85 बच्चे शोबा हिफ्ज़ में पढ़ रहे हैं, इनमें से 2 बच्चों की तकरीर मैंने सुनी, और कारी गुलफराज साहब ने बाद में कहा कि ये तकरीरें मैंने ही लिखवाई हैं, तैयारी मैंने ही करवाई है। तो ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आ रहा था कि ये बच्चे हमारे समाज के हैं या बाहर के बच्चे हैं या बाहर से पढ़कर आए। अंदाज़े बयां, तर्ज़े इल्क़ा, दलाइल जिस तरह से इन्होंने याद किया और उस तरह से जो बयान है उनका, कुछ भी नहीं लग रहा था कि ये शेरशाबादी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। हकीकत में हमारी बिरादरी के अंदर सलाहियतें कूट कूट कर भरी हुई हैं, लेकिन उनको उजागर करने की, सामने लाने की, उनको बनाने संवारने की, उनको रोशनी दिखाकर राह दिखाने की ज़रूरत है। नहीं तो इसी समाज के जो बच्चे आज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें इन्हीं बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो नदवे से फरागत हासिल करने के बाद पीएचडी की डिग्री हासिल की, और आज 4 शेरशाबादी बच्चे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनमें से 2 बच्चे सदर जमहूरिया अवार्ड भी पा चुके हैं। लिहाजा इल्म पर किसी की जागीरदारी नहीं है, इल्म पर उसी की जागीरदारी हो सकती है जो मेहनत करेगा, जो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। हम लोग बचपन में 75-76 से शऊर है हम लोगों को, 67 की पैदाइश है, 75-76 से शऊर है। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि एक गांव, जिस गांव के बच्चे सबसे ज़्यादा पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो गांव है कजरा गांव।
बड़ा मॉडल गांव, बच्चों की तालीम के लिए। लेकिन बच्चियों की तालीम के लिए इन लोगों ने सोचा नहीं था। और ये कारी गुलफराज आलम ने यह गुल खिला दिया है, यहाँ एक चमन आबाद कर दिया है 6-7 महीने के अंदर। और शोबा-ए हिफ्ज की तालीम देकर 85 बच्चों को एक अनोखा अंदाज से इन्होंने जो तालीम का सिलसिला शुरू किया है, अल्फाज ज़ुबान से किन किन अल्फाज के ज़रिए से इनकी तारीफ़ करें या इनकी हौसला अफजाई करें। मैं ऑफिस में बैठकर शेख सादी ने एक किस्सा लिखा है गुलसिता के अंदर, उस किस्से को सुना रहा था कारी साहब को, दोनों भाई को सुना रहा था, दिलशाद आलम को भी। और शेख सादी ने लिखा है, आप लोग भी उस चीज़ को समझिए। शेख सादी ने लिखा है कि एक आदमी रात के अंधेरे में हाथ में चिराग लिए हुए चल रहा है और वो आदमी नाबीना है। अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर उसको नाबीना बनाया, लेकिन वो रास्ते में जो जा रहा है, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और रास्ते में वो चिराग लेके जा रहा है। किसी आँख वाले आदमी ने पूछा कि भाई साहब, आपको तो रास्ता देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये चिराग किसके लिए आप जलाए हुए ले जा रहे हैं? कहा कि तुम जैसे आँख वालों के लिए, तुम जैसे आँख वालों के लिए, कि तुम मुझसे आकर टकरा जाओगे तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मुझे तो पता है कि किस रास्ते से चलना है, कैसे चलना है, मस्जिद तक हम कैसे पहुंचेंगे, मैं जान रहा हूं। सुभान अल्लाह, ये काम कर रहे हैं जनाब गुलफराज साहब। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की वो बात याद आती है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे कुछ नसीहत की बात सुनना चाह रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन कुरैश के साथ, बड़े बड़े लोग थे उनके साथ बैठे हुए थे और दरमियान में हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ गए। नाबीना साहबी थे जिनके बारे में वो मुअज्जिन रसूल भी थे और इमाम भी होते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत करते थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में नहीं होते थे। मदीना की निगरानी कौन करेगा? मदीना की देखरेख कौन करेगा? मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाएगा? तमाम मामलात को कौन संभालेगा? नायब बनाकर जाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किनको? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, पहले की बात है जब मक्का में, जब नबी के पास गए कुछ सुनने के लिए, कुछ सवाल मालूम लेकर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। क्यों आ गया ये? अल्लाह के रसूल पर हमारी जान और हमारे माँ बाप कुर्बान हों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये नहीं था कि इनको कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुंह बिगाड़ा कि अभी तो हम बड़े लोगों के साथ बैठे हुए हैं, इनको नहीं आना चाहिए था। जिसको उर्दू में मुंह बिसूर लिया, तुर्श रूई इख्तियार कर ली, उसी को कहा अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, कि आपने मुंह बिगाड़ लिया, चेहरा बिगाड़ लिया, आपने मुंह फेर लिया कि आपके पास कोई
नाबीना शख्स आ गया है। कौन? अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। वमा युद्रिका लअल्लहु यतज़क्का लअल्लहु यज़्ज़क्का, वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का। तो आपको क्या मालूम, हो सकता है वो पाकीज़गी हासिल कर ले। अल्लाह के रसूल को फटकारते हुए, ये बताते हुए कि नाबीना की बात को सुनना चाहिए। आज वो नाबीना मदीने में पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इमाम बनाते हैं, मुअज्जिन बनाते हैं। एक मरतबा वो आते हैं, सवाल करते हैं, लैसा ली काइदुन यक़ूदुनी इलल मस्जिद, मेरे पास कोई मस्जिद तक ले जाने वाला आदमी नहीं है। कीचड़ हो जाती है रास्ते में बारिश की वजह से, ठोकर से मैं गिर जाता हूँ। हाँ, तो मैं मस्जिद के लिए, मेरे लिए नमाज पढ़ना मस्जिद में ज़रूरी है, हाज़िरी देना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जाओ अपने घर में नमाज पढ़ लेना। फिर कुछ देर के बाद जब वो पलट कर जाने लगे, अतस्मउन निदा, अजान सुनते हो? कहा कि सुनता हूं। कहा फ़अजिबिन निदा, तुम जवाब दो उसका, क्योंकि अल्लाह कहता है हय्या अलस्सलाह, नमाज के लिए आओ।